Hello kids, welcome to the English class. This is the Jitendra Kumar. I am going to teach the preposition. In this lesson, we will discuss all kind of the preposition. This is the part of the speech we have already discussed noun, pronoun, adjective, article in the previous video. Now let's start. First I would like to tell what is the preposition. Preposition is made of the two words pre plus position. Preposition is a word that is the used to link the noun or pronoun with other words like in, on, between, at, of, from, since, for, among, beside. Now, look here. Look at the sentence. The boy jumped over the wall. Here, over is the preposition. Second sentence, the children are in the class. In is the preposition. In the first sentence, the word over tells us the relation between the verb jump and noun wall. यहाँ पे यानी कि फर्स्ट सेंटेंस जो है यानी कि जंप और वॉल के बीच में यानी कि ओवर को प्रीपोजिशन का रिलेशन बताता है. सेकंड सेंटेंस द चिल्ड्रन और क्लास के बीच में इन प्रीपोजिशन को बताता है. प्रपोजिशन यूजुअली कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन. प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है. विच इज़ द इट्स ऑब्जेक्ट, जो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं. द प्रीपोजिशन टेल्स रिलेशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट टू द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है? हमें बताता है कि रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. सेंटेंस में दूसरे शब्दों के ऑब्जेक्ट को रिश्ते को बताता है. Sometimes the preposition comes at the end of the sentence. और कभी कभी preposition sentence के अंत में आता है. When the object is the relative pronoun or interrogative pronoun. Here, look at the first sentence is the relative pronouns. Here is the book that you were looking for. ये क्या है? This sentence is the relative pronouns और यहाँ पे इसलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस करते हैं. व्हाट आर द लुकिंग एट? लुकिंग एट, दिस इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यहाँ पे एट और यहाँ पे फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है. द काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ द प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं. सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्लेक्स आर फ्रेज प्रीपोजिशन. Now the words like in, at, in front, about, underneath. सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है? सिंपल प्रीपोजिशन लाइक द in, on, at, by, from, about, over, under, through, till, up, of, for, to. They are the simple preposition because they are the single word. And this is they came from the Kolkata. The from is the simple preposition. There is some juice in the can. This is the simple preposition. He fell off the chair. Off is the simple preposition. Now look at the next. What is the compound preposition? Compound preposition are the words formed by the combination the preposition noun adverb. compound preposition क्या होते हैं? यह preposition noun adverb के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है. सम एग्जाम्पल ऑफ द कंपाउंड प्रीपोजिशन आर इन टू. आप यहाँ पे देखेंगे इन और टू से मिलकर बना है. अक्रॉस, ए एंड क्रॉस से मिलकर बना है. विदाउट, विदाउट विद एंड आउट से मिलकर बना है. विद इन, विद एंड इन से. और उसके अलावा इन साइड, इन एंड साइड. आउटसाइड, आउट एंड साइड. ऑन टू, ऑन और टू. बीनीथ, बी और निथ. बिलो, बी एंड लो. बिहाइंड, बी एंड हाइंड. बिटवीन, बी एंड ट्विन. तो आपने देखा ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है. ये दो वर्ड से मिलकर इसको बनाया गया है. अब आप यू कैन सी द एग्जाम्पल. पुट द ब्रेड इनटू द ब्रेड बिन. एट द मूवी हॉल. एट एंड I sat between Kavya and Varun. Between is the preposition. And she ran across the street to catch the bus. यानी
across is the preposition here. Now complex or phrase preposition. What is the complex and phrase preposition? Some preposition are made of the group of the words. कुछ preposition होते हैं जो group of the words से बने होते हैं, यानी शब्दों के समूह से बने होते हैं, कई शब्दों के समूह से बने होते हैं. that do the work of the single preposition. और हम इसको सिंगल preposition का, जो सिंगल preposition का काम करता है. These are the complex phrase preposition. इन्हें हम क्या कहते हैं? complex preposition कहते हैं या phrase preposition कहते हैं. like in front of, आप देखेंगे in front of 3 preposition से मिलकर बना है, यह एक complex preposition है. because of यानी कि यहाँ पे 2 मिलकर बने हुए हैं. with reference to यानी with reference to यहाँ पे 3 phrase हैं. in spite of यहाँ पे 3 हैं. in addition to यहाँ भी आप देखेंगे 3 हैं. according to यहाँ पे 2 हैं. along with ये भी 2 हैं. away from and by means of in the place of. तो आपने देखा कि ये कई preposition से मिलकर बने हैं. look at the example. there is a car in front of the house. in front of house यानी घर के सामने एक कार है. रीता succeed because of her hard working. because and of. in spite of the cold the children played outside in the garden. यहाँ in spite of ये a preposition है. Thank you. We will meet the next video. Now look at the preposition of the place. Preposition express the several relation. Preposition कई relation को express करता है. Preposition of the place tell us where. Some preposition of the place are above, below, under, over, beside, down, near, in front of the, around. यानी अगर हम preposition में where करके question करें तो हमें पता चलेगा कि यह हमें बताता है कि preposition of the place. जैसे the fruits hung above my head. तो अगर हम इसमें question करें कि where did the fruit hung, तो ये आंसर मिलेगा above my head यानी मेरे सर के ऊपर. ये above वर्ड क्या है? preposition है. उसके अलावा there is a new car in front of the house. where is a new car, तो आंसर मिलेगा in front of the house घर के सामने. the man walked down the road. the man walked down the road यानी कि where did the man walk, तो आंसर मिला down the road यानी सड़क की ओर. तो यह क्या बताता है? the preposition of the place. now look at the at, in, on are used as a preposition of the place. जैसे at is used for the specific point. the specific point at the door, at the corner यानी अगर हम दिखाते हैं किसी दरवाजे के आसपास तो हम वहाँ पे at का यूज करते हैं. at the corner यानी कोने के आसपास तो हम वहाँ at का प्रयोग करते हैं. at is used before the particular address, before the name of the place. जैसे I live at 22 आर्य नगर यानी ये हम प्लेस को इंडिकेट कर रहे हैं. लेट्स मीट्स एट द कॉफ़ी शॉप यानी हम यहाँ पे कॉफ़ी शॉप को इंडिकेट कर रहे हैं, हम कॉफ़ी शॉप में मिलने जाएंगे. इन इज़ यूज टू रिफर द इनक्लोज स्पेस. इनक्लोज स्पेस जो एकदम बंद या पैक हो. जैसे द बुक्स आर इन द बैग यानी बुक्स कहाँ है? बैग में. यानी कि बैग क्या है? इनक्लोज बैग है, उसके अंदर बुक्स हैं. द असेंबली टेक्स प्लेस इन द सेंट्रल हॉल. असेंबली कहाँ हुआ? सेंट्रल हॉल में. सेंट्रल हॉल क्या है? इनक्लोज स्पेस है और उसमें लोग हैं. या इन इज़ यूज्ड फॉर द लार्जर एरिया लाइक अ टाउन, सिटी, कैपिटल. जैसे वी लिव्ड इन चेन्नई फॉर द 10 years. हम चेन्नई में 10 years तक रहे. नाउ लुक यूज ऑफ एट. मैं आपको यूज ऑफ एट बता के कुछ और एग्जांपल बता रहा हूँ. जैसे एट डिनोट द आइडियाज़ ऑफ द एम. एट क्या करता है? हमें एम यानी कि डिनोट करता है. जैसे ही थ्रू द स्टोन एट द कैट यानी वह क्या किया? यानी बिल्ली पर पत्थर मार फेंका. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम डिनोट कर रहे हैं यानी द आइडिया ऑफ द एम यानी कि
हम किसी तरह के तरफ निशाना साध रहे हैं। एट इज़ यूज विद द स्मॉल टाउन एंड विलेज, यानी एट का प्रयोग छोटे गांव या शहरों में के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही लिव्स एट द विलेज रामपुर, वह विलेज रामपुर में रहता है। तो ये छोटा एरिया है विलेज रामपुर। एट इज़ यूज बिफोर द नाउन डिनोटिंग द डेफिनेट पॉइंट ऑफ द टाइम। एट का प्रयोग पॉइंट ऑफ द टाइम, निश्चित समय के लिए हम डिनोटिंग करने के पहले, नाउन के पहले करते हैं। जैसे ही कॉल्ड मी एट 7 AM, यह 7 AM क्या है? एक निश्चित समय है, उसको इंडिकेट करने के लिए। इन यानी कि इन मीन्स एट द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द फ्यूचर, यानी इन का प्रयोग हम फ्यूचर में, यानी कोई पीरियड को, एक्सपायरी को बताने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे सी विल रिटर्न इन द मंथ, वह 1 महीने में वापस लौट जाएगी। इन अ मंथ, एक महीने में। ही विल फिनिश माई वर्क इन अ वीक, वह 1 सप्ताह में अपना काम समाप्त कर लेगी, 1 सप्ताह में। इन इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ द मंथ एंड ईयर, यानी आई वॉज बोर्न इन 1981, यानी वह कब पैदा हुई? 1981, या किस महीने में? इन द मंथ ऑफ द मंथ, यानी जुलाई, यानी वह जुलाई के महीने में 1981 में। इन एक्सप्रेस द रेस्ट आर मोशनलेस इनसाइड द एनीथिंग, यानी इन का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो मोशनलेस हो या रेस्ट हो। जैसे बोटल्स आर केप्ट इन द फ्रिज, बोटल्स कहाँ रखे हैं? एक मोशनलेस, यानी कि एक अस्थाई जगह पे इसको रखा गया है। नाउ कुछ और एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको। यूज ऑफ ऑन, ऑन इज यूज्ड फॉर ए सरफेस, ऑन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सरफेस में के लिए करते हैं। जैसे आई रोट माई नेम ऑन द कवर, जैसे हम कवर के ऊपर हमने अपना नाम लिखा, कहाँ लिखा? कवर के ऊपर लिखा, यानी किसी सरफेस पर लिखा। या देयर आर द लाइट्स ऑन द सीलिंग, यानी लाइट्स कहाँ है? सीलिंग के ऊपर है, यानी कि सीलिंग के सतह पर। एंड ऑन इज यूज्ड फॉर द रोड, नेम ऑफ द रोड एंड स्ट्रीट्स। जैसे वी लिव ऑन द MG रोड, हम कहाँ रहते हैं? ऑन द MG रोड, हम MG रोड पर रहते हैं। बिटवीन, व्हेन देयर आर ओनली 2 पर्सन और 2 थिंग, जब कोई 2 व्यक्ति या कोई 2 वस्तु हों, उनके लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे कृति सैट बिटवीन हर 2 बेस्ट फ्रेंड, कृति कहाँ बैठी है? अपने 2 मित्रों के बीच में। यहाँ 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच में बैठी हैं। यहाँ पे among, among इज यूज्ड फॉर द मोर देन 2 पर्सन, मोर देन 2 थिंग्स, 2 व्यक्ति या 2 वस्तु से ज़्यादा के लिए। जैसे शेयर द चॉकलेट इक्वली among योर कजिन, यानी यहाँ पे 2 नहीं है बल्कि 2 से ज़्यादा हैं, यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पे हम among का यूज करते हैं। beside, beside टू मीन्स बाय द साइड ऑफ, beside का मतलब होता है बगल में। जैसे आई सैट beside माई मदर एंड, यानी मैं बैठ गया, कहाँ बैठ गया? कि अपनी माँ के बगल में। तो beside मीन्स होता है बगल में। तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ beside है लेकिन यहाँ पे besides है। अगर यस लग जाता है इसका मतलब होता है टू मीन्स एक्सेप्ट और एडिशनल टू, इसके अतिरिक्त। जैसे हु बिसाइड मीरा कुड हैव डन दिस, यानी मीरा के अतिरिक्त, मीरा के अलावा और इसने किसे कौन कर सकता है। या बिसाइड तारा रवि बीना वर एट द शो, यानी तारा के अतिरिक्त, बिसाइड द तारा, तारा के अतिरिक्त रवि बीना वर एट द शो, यानी रवि और बीना भी शो में थे, यानी इसके अतिरिक्त। उसके अलावा नाउ कुछ हम और आपको बताते हैं। जैसे ऑन, ऑन इज यूज फॉर द थिंग्स एट द रेस्ट, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। ही इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, यानी वह कहाँ बैठा है? फर्श पर, यानी फर्श की सतह पर बैठा है। तो किसी सतह पर टच करते हुए कोई दिखा जाता है, हम वहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। ऑन इज यूज विद द डेट, नेम एंड डेज, यानी ऑन का प्रयोग हम डेट के नाम के पहले करते हैं। जैसे ही ज्वाइन द कॉलेज ऑन द 1 जुलाई, यानी यह हम डेट है।
यह फर्स्ट डेट की 1 जुलाई को यानी कि वह कॉलेज पर ज्वाइन किया। या इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन द 15 अगस्त। इंडिया कब आज़ाद हुई? ऑन द 15 अगस्त। 15 अगस्त, यह 15 अगस्त को डेट को शो कर रहा है। एंड यूज ऑफ द सिंस, सिंस का यूज करते हैं। सिंस इज यूज बिफोर द नाउन आर फ्रेज डिनोटिंग द पॉइंट ऑफ द टाइम, इज ऑलवेज प्रेसिडिंग बाय द वर्ब इन द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आप जितने भी ऑल परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, यानी कि पॉइंट ऑफ द टाइम, निश्चित समय के लिए हम यहाँ पे हमेशा सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मॉर्निंग क्या है? पॉइंट ऑफ द टाइम, निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए हैं। उसी तरह से यू हैव नॉट हेयर फ्रॉम दिस अंकल सिंस संडे, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हम समय को, निश्चित समय को इंडिकेट करने के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। थैंक यू, हैव अ कलरफुल डे।